ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਵਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਇ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਛੜਾਇ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਤਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ। ਖਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੈ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ।
जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान काम क्रोध ना मोहिए बिन सै लोभ सुवान अच्छे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान अठ सठ तीरथ सगल पुन जी दया परवान जिसनु देवै दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडिया है जिन पूरा गुर मेहरबान जिना मिलया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडिया जिन पूरा गुर मेहरबान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु जी के पवित्र दरबार की हाजरी भर के हजूर दे अमृत बचन गुरबाणी कीर्तन गुरु सवारियां पासों आप जी ने श्रवण किया है। लड़ीवार जो 12 माह की विचार सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा नाल आपां आरंभ की है। अज 11वां महीना जो 12 माह की लड़ी के अंदर माघ के रूप अंदर हजूर ने दर्ज किया। पाठ आप जी ने श्रवण किया। आओ धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी के चरणों की टेक लवो। आप जितने भी बैठे हैं कथा का भाव केवल फूकी चर्चा नहीं, कथा कीर्तन का भाव ही ये वे कि किते अंदर खिंडिया होया टिक के मालिक के चरणों में जुड़ जाए। आप बख्शो आशीष। धन गुरु अर्जुन साहब जी के चरणों में करिए अरदास। मेरे दातार आप कृपा करके विच वरतो। अपने अमृत बचनों की विचार प्रेम भय भावना एकाग्रता नाल आप कृपा करके करा लो। करो बख्शिश और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने अज इस माघ के महीने राही
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਚਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਬਾਹਰ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ। ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮਾਘ ਦਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੱਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੱਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੱਜਨ ਕਰਨੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਰਬੈਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੈਣੀ ਭੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤੈ। ਤਰਬੈਣੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੈਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਉਦਰ ਪੂਰਤੇ ਦੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਡਿਤ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੱਕਿਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿ ਆਪ ਮੀਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇਰੀ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ।
ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੱਜਣੇਦਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਆਲਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦੇਵ, ਆਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਆਲਿਆ ਦਰ ਤੇ ਘਰ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਘਰ। ਦੇਵ ਆਲਿਆ ਦਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੋਚ ਆਲਿਆ। ਸੋਚ ਆਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣ, ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੂਕ ਦਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਏ? ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਵਿਣ ਭਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਭਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਤੀਰਥ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਪ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਪਰਤ ਕੇ ਮੰਨੀ
ते मनण तो बाद गुरमुखा जदों तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा, तू तो खुद ही तीर्थ बन जाना है, तेरे कोल बैठियां दे अंदर दी मैल खत्म हो जाएगी। सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मनना हो। ये साहब दी बाणी विचों कबीर साहब खास करके बनारस रहे ते आप सब नूं पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर साहब दे जिहड़े शब्द ने उन्हां नूं आपां जदों पढ़दे हां ते एक एक शब्द दे विचों सच जिहड़ा फुट फुट के सामने आउंदा पिया। उन्हां दा एक शब्द आउंदा है, कहण लगे झगड़ा एक नबेरो राम, कहंदे ने मेरे मन विच एक तोखड़ा पैदा हो गया, जे तू कबीर नूं अपना सेवक बनाना है ते एक झगड़ा खत्म कर। ते महाराज वो झगड़ा कहदा, कहण लगे मैनूं एक गल समझ नहीं पैंदी भी इत्थे लोकी खिच्चे तुरे आउंदे ने इशनान करन वाले, जे तू अपने सेवक नाल 4 दिन कढने ने, कहो कबीर हों भया उदास। वो शब्द अखीर दे बचन ने, कहंदे ने मेरे मन विच एक उदासी है, तीर्थ बड़ा के हरका दास। ये मैनूं गल समझा दे भी तीर्थ वड्डा है कि तेरी बंदगी करने वाला वड्डा है। फिर वो कहंदे ने नहीं, असल विच तेरी बंदगी करने वाला खुद तीर्थ है। ध्यान दिया जे उन्होंने कुछ प्रमाण दिते ने ते सारी जिंदगी वो बनारस विच रहे ने ते लोग हर एक बंदे नाल उन्होंने चर्चा की ते कबीर साहब की बाणी दे गुरमुखो टीकाकारा अर्थ जरूर कीते जे, पर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच कहना उस आत्मक जीवन नूं छो नहीं कोई सकिया जिस अवस्था विच कबीर बोलदे पे। कबीर साहब दे वचन हुंदा है, सारी जिंदगी वो रहे बनारस विच ते जदों अंतला समा आया ते वो बनारस नूं छड्ड के मगहर दी धरती ते चले गए। ते एक मनौत है कि जेड़ा बंदा पापी भी बनारस विच तन छड्डे वो मुक्त हो जाता है, ते मगहर दे अंदर जाके भावें भगती करने वाला तन छड्डे वो सरापी धरती गोरखपुर दे नेड़े धरती मगहर दी, किधर उत्थे कोई अपना तन छड्डे भगती बंदगी कीती होवे वो गधे दी जून विच पैंदा। कबीर ने भी काम लोकां दे सामने कर दिता। सारी जिंदगी बनारस विच गए, अखीर ते जदों शरीर छड्डना मगर तुर पे तो लोग कहन लगे भी सारी जिंदगी उल्टे काम कीते ने, अंतले समय तां सीधा कर। पुछया जी क्यों? कहन लगे हुण मुक्ति मिलण दा वेला है ते तीरथ ते अपने प्राण त्यागेगा मुक्त हो जाएगा, मगर दी धरती ते जाना वो सरापी धरती ते तेरा भला नहीं होना। कबीर साहब का शब्द आउंदा है, गौड़ी राग विच कदी पढ़ियो, कहन लगे कि लोग सारे गल्लां पै करन, उन्होंने फिर अमृत बचन कहन लगे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूर्व जन्म को तप का हीना, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरण भया मगहर की बासी। सारी जिंदगी इत्थे तप करदा रहो, मरदे समय मगर उत्थे फिर कबीर जी ने एक गल कही, कहन लगे दुनिया दे लोगो तुसी मथे ते टिक्के ला, केवल हिंदू ली नहीं अज मेरे वीर ली भी लागू वे, जे बाना पाया ते अंदर गुरु दा प्यार नहीं। कहन लगे मथे ते टिक्का ला, गले विच जनेऊ पा, ठेकेदार बनिया धर्म दा, पर एक गल चेते रखी कि जे तू गंगा दे किनारे भी रहे ते सारी जिंदगी मथे ते तिलक ला के इशनान करदा रहे ते गंगा विच बैठे हो डड्डू तो पुछ ली, जे ओदा खानदान मुक्त हो गया ते मुक्त तू भी होएगा। जे गंगा विच रहिंदा डड्डू नहीं मुक्त कर सकी ते तेनू किवें उन्हें मुक्त कर देना। साहब ने उत्थे एक बचन किया, कहन लगे अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। फिर अगे अर्ज करनी है जी इशनान केड़े दी गल कही, कह लगे अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। प्यारिया लोग जरूर कहणगे वाह वाह तीर्थ इशनानी, लोक पतीने कछु ना होवे ना ही राम ए आना, रब कदी आना नहीं। जे कहिए भी लोग सारे वोटा पा के कह देन भी तू ब्रह्म ज्ञानी, रब कदी वोटा नाल थोड़ा रीझदा। मैं कई बार अर्ज करना हुन्ना, कदी देखियो धर्म नाल कदी भीड़ नहीं जे हुंदी, धर्म नूं कमाण वाला एक अद्धा हुंदा है। साहब ने तां बाणी विच क्या कहण लगे, जन नानक कोटन मैं को नारायण जे चीत, कहण लगे हैन विरले ना ही कहे। गुरु ग्रंथ साहब कहण लगे जग में उत्तम काढिए विरले कई के, कदी तकियो खां चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर जी का शरीर पिया ते उत्थे भीड़ कोई घट सी, हजारां की तादाद विच लोग खलोते ने, पर
धर्म नूं नेह करन वाला केवल इक्को जैसा है जिहड़ा मेरे सच्चे पातशाह दे सीस नूं सीने नाल ला के आनंदपुर साहिब दी धरती नूं जावे। पर एक गल चेते रखियो, भीड़ दा नाम मिट जांदा है ते सच कमाण वाले दा धवज ओहदा निशान सदा लई झुलदा रहिंदा है। गगन पाकिस्तान ने एक दिन अर्ज कीती सी, ओहदियां किताबां बड़ियां सोहणियां पढ़न वालियां। उन्हें बड़े कमाल की गल कही। उदों कोतवाली दे सामने ना लाल किला दिसदा हुंदा सी। वो कहंदे ने लाल किले कभी देख तेरे ते निशान कोई झुलदा सी, झंडा झुलदा सी, जिन्हें सच दा झंडा बुलंद करन वाले नूं चौरस्ते विच चौंक है ना, उस चौंक विच अग नाल उहदे सेवकां नूं साड़िया, उबलदी देग विच बिठाया, आरे नाल चीरिया, पर कदी लाल किले तू देखिया नहीं। सदियां हो गईयां ने, तेरे ते पता नहीं किन्ने कु झंडे बदले गए, किन्ने कु बदले जाने ने, पर जिस थां ते सच दे खून दा तुबका डुला सी, रहिंदी दुनिया तक ओहदे निशान ने कदी नहीं बदलना। तेरे बदले गए, वाकई बदले गए। कदी मुगल आए, कदी अंग्रेज आए, कदी तिरंगा आ गया, पर चांदनी चौक में साहब का जिहड़ा बचन, खैर मैं अपने विषय ते आवां, साहब कह लगे अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीना कछु ना होवै नाही राम आना। ते कबीर साहब की करिए, कह लगे पूजो राम एक ही देवा, जे अंदर नूं धोणे ते परमेश्वर दा सिमरन कर, साचा नामन गुर की सेवा। जिन्नी सेवा करके तू मैं लाएगा, तेनों लिख के दे देना सेवा करने वालिया, गुरु कृपा करके तेरे अंदर नूं धो देगा। पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा। फिर कह लगे जल के मज्जन जे गत होवे, जे पानी विच नहाउंदिया मुक्ति मिलदी होवे, नित नित मेंढक नहावे। फिर नाल कह लगे जेड़े इस गल ते विश्वास करदे ने, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। अगली अखीर दी जड़ी तुक कही बचन क्या उहदे विच कह लगे मनु कठोर मरै बनारस, जे मन तेरा पत्थर दिल बनया बैठा कठोर है, ते तू सारी जिंदगी लोकां दा गला घुट के खून पींदा रहे, ते अज तेनों कहण भी बनारस विच बापू जी शरीर त्याग देन मुक्त हो जाएगा, कह लगे सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। मनो कठोर मरै बनारस, नरक ना पांचिया जाई, पर प्यारिया हर का संत मरै हड़ंब है, जिन्हों कहना सरापी धरती है, जे करनी वाला उथे शरीर छड्डे ते जेड़े उहदे नेड़े ने उन्हां नूं भी तार सकदा है। हर का संत मरै हड़ंब है, सगली सैन तराई। कबीर साहब की बाणी विच एक बचन हुंदा है, कह लगे नामन को तीर्थ घणे मन बौरा रे। गौड़ी कबीर जी, नामन को तीर्थ घणे मन बौरा रे, पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। खैर अपने विषय वाला साहब कह लगे तू इन्हां तीर्थां ते यकीन नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच हजूर कह लगे ये तीर्थां मानू भगती करन वाले दे चरनां दी खाक पै मंगदे। साहब ने आरंभ विच कहा माघ मज्जन संग साधुआं, माघ दे महीने विच इशनान करने ते साध संगत करया कर, जुड़िया होयां दी संगत कर, ओहदे विच तेरा अंदर धुपेगा। धूड़ी कर इशनान, उन्हां दे चरनां दी धूड़ नूं मस्तक ते लाई, निमरता रखेगा ते अंदर अपने आप ही पवित्र हो जा। साहब कह लगे इशनान करने ते उन्हां दे चरनां दी धूड़ विच दो गुरु ग्रंथ साहिब विचों प्रमाणिक भाई गुरदास दा बचन, वो कहंदे ने जिन्हां नूं आपां कहने आ ना भी ये पवित्र करदे ने। भाई गुरदास दी एक पौड़ी कहंदे ने गंगा नूं तीन नाम दिते गए, नूं तर्क ना समझियो, सिर्फ केवल इस बचन लई भी गुरु ग्रंथ साहिब ने की सानू रहमत करके नवेकली विचारधारा दी। भाई गुरदास कहंदे ने कि गंगा तिन्ना लोकां विच मन्निया वगदी, स्वर्ग विच इहनूं भोगा अमरावती कहिंदे ने, पताल विच इहनूं भोगावती कहिंदे ने, ते इस भू लोक दे अंदर गंगा कहा जांदा है। ते 68 तीर्थ जिहड़े ने वो गंगा दे किनारे ते बने ने। उत्थे फिर साहब भाई गुरदास ने एक बचन किया, कह लगे चरण अद कोए सुरसरी तज बैकुंठ धरत विच आई, बामन दे चरना दा जल है गंगा। कह लगे स्वर्ग नूं छड्ड के जदों धरती ते आई ते शिव जी ने अम्मा शिव जी ने अपनियां जटावां विच गंगा नूं थां दित्ती। चरण उद कोए सुरसरी तज बैकुंठ धरत विच आई, 900 नदी 99 800 तीर्थ अंग समाई। भाई जी की गिनती तक वो कह लगे 999 नदियां का पानी गंगा दे विच पैंदा है।
900 नदी 99 अवसर तीर्थ अंग समाई त्यों लोई परवान होई महादेव ले शीश चढ़ाई तिन्हां लोकां विच परवान कीता महादेव ने अपने शीश ते थां दित्ती। फिर कहन लगे देवी देव सरेम दे जय जयकार वड्डी वडियाई सारे गंगा दी सिफत करदे ने। कहन लगे सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई पर गंगा दी आवाज सुन के देखो वो कहंदी है दुनिया दे लोगो तुसी मेरे विच आके स्नान करदे हो पर मेरे लिए बेनती करियो सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई की। कहन लगे साधु धूड़ दुलभ है माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान साधु धूड़ दुलभ है साध संगत सतगुर शरनाई दुनिया दे लोगों चरण कमल दल कीम ना पाई जुड़े होए दे चरण कमलों में जड़ी राख मिट्टी पई है ओदी भी कीमत कोई नहीं पा सकता। जदों ये बचन पढ़े ते गुरु रामदास जी का शब्द पढ़ो गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करा उदम धूड़ साधु की ताई किलविक मैल भरे परे हमरे विच खमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। हजूर कह लगे माघ मजन संग साधुआ गुरमुखां की संगत कर फिर किवें कर साहब कह लगे पिंगल पर्वत पार परे खल चक्र बुकीता माघ मजन संग साधुआ देख उन्हां दी संगत कीतियां पिघले मनुख भी पहाड़ ते चढ़ सकते ने मूर्ख जेड़े ने वखियान करता बन सकते ने। माघ मजन संग साधुआ कह लगे पिंगल पर्वत पार परे खल चक्र बुकीता अंबले तर भवन सोजिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की माघ मजन संग साधुआ महंगा महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पै चीता। साहब कह लगे मस्कंग पगड़ंत सैलंग करदमंग तरंत पपील कै सागरंग लघंत पिंगंग तम प्रकाश अंध कै। ये साधु की महिमा ही मस्कंग कहते ने मच्छर कहते ने जे मच्छर वर्गा कमजोर बुझ दिल मनुख होवे किसे जुड़े होए दी संगत करदा है तो पहाड़ वर्गे वकारां नाल टक्कर ले सकदा है। मस्कंग पगड़ंत सैलंग करदमंग तरंत पपील कै ते कीड़ी सुके मिट्टी तेरी चंगी तरह चल सकती किसे जुड़े होए दी संगत करे ते कीड़ी वर्गा चिक्कड़ दे समुंदर नूं पार कर सकदा है। सागरंग लघंत पिंगंग पिंगले बंदे समुंदर तक तर सकते ने। तम प्रकाश अंध कै जिन्हों कुछ नहीं दिसदा रब नूं अंदर दा चानण दे दिंदा पर शर्त कि माघ मजन संग साधुआ जो गुरमुखां दी संगत जुड़िया होया दी संगत करे। कहन लगे धूड़ी कर इशनान उन्हां दे चरनां दी धूड़ विच इशनान दा भाव है अपने आप नूं निमरता विच लियाई। गुरु घर दे अंदर धूड़ी दी बड़ी वड्डी महानता दसी गई। आप सब नूं पता है जदों आपां शाम नूं सौंदे आ ना अखीर ते जिहड़ी मंग असीं मंगने आ सवेर दे नितनेम विच सब तो पहली मंग की है ते रात नूं सौण लग्गिआं साडी मंग की है दो गल्लां चेते रखियो। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा नूं समझण लई जदों सवेरे उठ के असीं नितनेम करने आ ते साडी पहली मंग जपजी साहिब विच आउंदी है। वो पंजवीं पौड़ी दी अखीर दीआं पंक्तियां पढ़ियो। कहण लगे जे हों जाना आखा नाही पहली मंग की सवेर दी जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई ते अगे मंगने आ गुरा हे सतगुरु एक दे बुझाई मैनू एक गल चंगी तरह समझा दे केड़ी सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाए। सब तो पहली मंगे जेड़ा सब नू रिस्क देने वाला है मैनू कदी भुले ना। ते जदों अखीर ते सोने आ मैं सोचना ये ओही बचन ने जेड़ा बाबा जी सचखंड विचों लैके आए थे भाई साहब कहते ने बाबा पहला सचखंड नौनित नाम गरीबी पाई पहला नाम फिर गरीबी पहला नाम फिर गरीबी। सवेरे दात मंगी सिख ने सब तो पहला कि सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। अखीर ते सौन लग्या कहंदा अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे धूरे गरीबी है धूरे निमरता है। संत धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने जे मेरे घर विच आउणे ते हंकार नाल नहीं चरण धूड़ का भाव ही ये वे अपने आप को मिटा के आई। साहब दे बचन असीं पढ़ने हाँ कि पहना मरण कबूल। साडे सजने इस पंक्ति का बड़ा प्रचार किया जाता कि मरण की गल पहला कि गुरमुखो मरना भी वो स्वीकार है जिहड़ा गुरु नूं भा जाए।
कभी पढ़ियो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, कला लड़ के मर जाना कह देना भी शहीद हो गया, गल बड़ी उच्ची है। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते ना भीजै भिड़ मरै भिड़ सूर में भिड़ के मर जान ते रब कुछ नहीं हुंदा। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब गुरु दे अमृत बचना के आधार से सवैये सी पढ़ने। एक बचन हुंदा शुद्ध सुपा दुरंत दुबा सो साज सुना दुरजान दलेंगे, भारी गुमान भरै मन में कर पर्वत पंख हालै ना हालेंगे। ये सूरमे की परिभाषा है। शुद्ध सुपा दुरंत दुबा सो साज सुना दुरजान दलेंगे, भारी गुमान भरै मन में कर पर्वत पंख हालै ना हालेंगे। तोड़ अरीर मरोड़ मवासन माते मतंगन मान मिलेंगे। पर प्यारिया श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। जे हाथियां नूं डालिया तां कादी गल होई, जे श्रीपत भगवान दी तेरे ते कृपा नहीं ना ते इस तरह दुनिया तो जाएगा जिवें कंगाल चला जाता है। साहब ने क्या मरना कबूल करी, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, पर एक शर्त हो रही जो पालेगा तो मरण की जांच आ जाएगी कि खो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास धूड़ी कर स्नान। हो सबना की रेणुका सब दे चरण दी धूड़ बनी ते सतगुरु दे घर अंदर धूड़ फिर उच्चे मरतबे दे किवें पहुंचदी है। निमरता वाला सब तो उच्चा जे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने जेड़ा बंदा अपने आप को शुभ कर्म करके कहता मेरे वर्गा कोई नहीं, महाराज कहते ने उहदे वर्गा मूर्ख बंदा ही कोई नहीं। आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट ना आवे। कहते सवाल ही नहीं पैदा होता जेड़ा कहे मैं चंगा वो चंगा हो ही नहीं सकता। आपस को जो जाना नीचा सो गणिए सब तो उच्चा होई जेड़ा अपने आप को नीवा कहंदा है। साहब गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन साहिब कहते ने माघ के महीने विच उन्हां दे चरनां दी धूड़ मस्तक ते लाई जेड़े जुड़े ते कदी तको दो प्रमाण अर्ज करने ने। काबल तो संगत आई है। धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जिथे खालसा कॉलेज इत्थे संगत ने पड़ा किया भी शाम पै गई है ते सवेरे गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह के दर्शन करने। सिख इतिहास कहता है जुड़े हुए सन, उन्हां विच बजुर्ग सन, उन्हां दे गुरु घर आउण दा ते साडे आउण दा बड़ा फर्क जी। वो जदों तुरदे सन टोलियां विच आसा दीवार दा कीर्तन करदे तुरना, शब्द इन्ने प्यार नाल भेज के पढ़ना भी गुरु तक जांदिया जांदिया भांडा तैयार हो जाए ते गुरु नदर करके इस भांडे विच ऐदकी बस टिका ही देते। उन्हां दी मंजिल सी साईं नूं पाना। शब्द पढ़ते बजुर्ग बच्चे बीबियां सारे आए, उथे कीता विश्राम ते पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव सच सिरजणारा आप मेरे दाता जी गए ते रात नूं हनेरे विच बजुर्ग हाय हाय पै करन। उन्हां कोल खलो गए ते पुछदे ने बाबा आए किथे हो, जाना किथे जे? एक बजुर्ग बोल के कहंदा बेटा आए काबल तो वा, जाना धन गुरु अर्जन साहिब दे चरण स्पर्श करने। कहन लगे इन्नी दूर तो तुरते आए तो बजुर्ग अखां भर के कहंदा अपने गुरु का शुक्र करना आया जिन्हें लै आंदा जे ओहदे दर ते सिर परने भी होके आउणा पै ते असीं तां भी आउण नूं तैयार सां। कहन लगे ना प्यार कदी गुरु अर्जन साहिब दे बचन पढ़ो। प्रेमी तां निक्की गल करदे कोई नहीं। साहिब तां कहंदे ने खंभ विकांदड़े जे लहां कि ना सावी तोड़। कहंदे ने अपने बराबर तोल के मैं खंभ खरीद लवां, तन जड़ाई अपना लाह सो सज्जन टोल। कह लगे ओहदे दर ते आए सिर परने होके आना पै ते कह लगे हाय है क्यों? कह लगे शरीर जवाब दई जांदा है, हड्डियां जेड़ियां ने चीसां मारदियां ने, दर्द हुंदी पई। धन गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह चरनां विच बह गया। कह लगा बापू जे किरपा करे मैं तेरे चरनां नूं घुटन दी सेवा कर ला। तो बिरध ने देखिया फिर क्या कहन लगे बजुर्गा मैनूं सेवा कर लैंदे आया तू गुरु साहिब दे चरनां विच। कहंदे ने उसे वेले साहिब धन गुरु अर्जन साहिब ने एक एक बजुर्ग दे चरण पकड़ के आप मुठा चापी कीती, सारी रात सेवा करते रहे। सवेरे शब्द पढ़दी जदों संगत कही ते हजूर नाल गए। गुरमुख प्यारे एक लिखते ने प्रिंसीपल नरेंद्र सिंह सोच, तो कहते ने बाबा बुढ़ा साहब अगे खलोते सन। गुरु अर्जन देव संगत दे बुझ के उन्हां दे कपड़े बिस्तरे चौके नाल तुरे आउण ते जोड़े ला के काली काली हो गई कि पहला दर्शन मैं करां। ते धन गुरु अर्जन साहब कोल खलोते कहन लगे जोड़िया विच कौन खलोएगा? संगत कहन लगी
हजूर कह लगे बजुर्गो जे सेवा मैनू दे देवो तो मेरे बड़े भाग होणगे, तुसी दर्शन करो, मैं सेवा करना हूं। जदों संगत अंदर गई बाबा बुढ़ा साहब तकदे पए सन, आके पूछया, क्योंकि बुढ़ा आद सिख सी ना, सिख संगत जदों भी आउंदी सी जिस घर विच बाबा बुढ़ा बैठा हुंदा सी समझिया जांदा सी ये गुरु नानक दा सच्चा घर है। गुरु अमरदास जी ने ते गल ही मुका दित्ती, कहण लगे बाकी गल्लां छड्डो, जिदन सन ला के प्रगट किया गुरु ते धन गुरु अमरदास जी ने साथी ना ला के कहा गुरु प्रगट करन दी जाच सिखनी है तो गुरु तो सिखियो। असीं तो सिर्फ साथी सुना देने, सन लाई पिछों। बाबा बुढ़ा कह रहा सी लोगों जे गुप्त नूं प्रगट करना है बाहर दे दरवाजियां ते ताला लाओ, अंदर का दरवाजा खोलो, जदों 10वें द्वार खोलोगे तो गुरु जरूर प्रगट होवेगा। बाहर दे दरवाजियां ते बिल्कुल ताले लगे पए सन, किते नहीं सन साहब जाओ बाहर का दरवाजा किते खुला मिलिया सी। साहब धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने जदों सीने न लाया उत्थे फिर कोई शब्द कहे, कवि संतोख सिंह ने श्री गुरप्रताप सूरज विच अंकित किया, कहन लगे कि सिक्खी अवध न इस्तै परै, नाम लैत गन बिघन सो हरै। तू सिक्खी दी हद है, तेरा नाम लिया पाप खंडन हो जाएंगे। कहन लगे ये भवजल को बोयत पारा, ये संगत को बोयत भारा, भवजल ते करह निस्तारा। बाबे बुढ़े ने जदों तकिया संगत ने पूछया धन गुरु अर्जन साहब किथे ने, दर्शन करन आया ते बाबा जी दे नेत्रां विचों नीर दी झड़ी लगी, बोले कुछ नहीं। हुण तपो पिरथिया अपने दावे करदा सी, धन गुरु अर्जन साहब केवल कह रही नहीं रह के धूड़ी कर इशनान। बाबा बुढ़ा साहब अखां भर के कहंदे ने जिस दे चरण तुसी पकड़न आए हो वो तुहाडी रात दी चरनां नूं घुटदा पिया, आओ तको जिहड़ा तुहाडे जोड़े कपड़े नाल पल्ले नाल साफ पिया करदा ओही धन गुरु अर्जन साहब है। संगत आई चरनां ते डिग्गी, देखो सेवा किवें करनी है। साहब गुरु अर्जन देव जी नूं बाबा बुढ़ा साहब कहंदे ने दातार तू दीन दुनी दा मालिक है। संगत कहन लगी सतगुरु साडे जोड़े, हजूर ने कहा तुहाडे नहीं। कहन लगे बुढ़िया तू गुरु नानक दे दर्शन कीते ने, नीज ला के तकी गुरु दर ते आउण वालियां दे जोड़ियां विच गुरु नानक दा जोड़ा पिया। मैं गुरु नानक दी सेवा करना किसी मनुख दी नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जदों क्या महाराज ये क्यों सी सिख हां ते मेरे गुरु अर्जन साहब ने उत्ते बचन क्या कहन लगे गुरसिक्खी भाड़ा मन्निया गुर पूरा पार लंघाए, गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाए। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहन लगे माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, उन्हां दे चरण धूड़ विच इशनान करी। ते भाई गुरदास जी नूं कदी पुछो उन्हां दा कबित हुंदा वो तां इत्थों तक कहिंदे ने कि सारी जिंदगी मैं कोई सेवा नहीं कीती। कहंदे ने मेरे मरण तो बाद जिहड़ी मेरी मड़ी दी सवाह है ना उन्हां राहां ते बिखेर दिया जे जिथे सेवा सिमरन करन वाले जांदे ने। पुछया क्यों? कहंदे ने पाप मैं बड़े कीते ने, हे करनी वालिओ तुहाडे चरनां दीयां तलियां ला के मेरी राख किते मैं भी पवित्र हो जावां। उथे बचन वरते नख सिस लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण पर वारी है। अग्न जलाए पुन पीसन पसाए ताए लय उड़े पवन कोई अनक प्रकारी है। जत को जत कत सिख पग धरै पंथ प्रात ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारी है। कहन लगे तह पद पादक उन्हां दे चरनां नाल तह पद पादक चरण लिव लागी रह दया कै दयाल के दयालु नाम जपण वालिओ मैं पदत उधारी है मेरे वर्गे पापी नूं पार कर दिया। साहब कहंदे ने माघ विच तीरथ ते ना जाई, जे तीरथ ते इशनान करनी फिर चेते रख तीर्थ नहावन जाऊं तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जे तीर्थ ते इशनान करने ते धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने अमै जल उस गुरु के चरणों में निरंतर वगदा पे गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरै। जे तीर्थ इशनान करने ते साहब कहने अमै दृष्टि शुभ करे हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल। सना सुख मन वसै दुख संसारै खोवै गुर नवनी दरियाओ जन्म हम कालक तोवै। फिर सो कहो टल गुर सेवियै ऐनस सहज सुभाए
दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। जे इशनान करने फिर गुरमुखां दी संगत करी, चरण धूड़ मस्तक ते लाई। ये हर धर्म वाले ने निमरता विच मने। एक दिन बचन पढ़ा पिया तुलसी ने श्री रामचरित मानस लिखे। शायद आपनू पता होवे, नॉलेज हर धर्म की चाहिए, संकीर्णता तो थोड़ा उच्चे उठ के। तुलसी कथावाचक सी। ਇਹਦੀ घरवाली का नाम रत्ना सी। इस्त्री दे प्यार विच इन्ना मगन सी कि एक दिन इस्त्री मैके गई, घर आया ना देख के व्याकुल होया ते रस्ते विच नदी पैंदी सी ते तुलसी ने उस नदी नू पार कर लई एक सुक्की मुर्दा लाश पिंजर नू लकड़ समझ के नदी पार करके जो घर गया आवाज दी, रत्ना मैं आ गया। वो भागा वाली अंदरों जागी सी, कह लगी अफसोस जिन्ना मेरे लिए तड़प रखने, जे किते इन्नी राम ली रखें ते तेरा जीवन सुधर जाए। वो तू पिछा परते अगे नहीं गया। तुलसी की करनी बड़ी हुई ते तुलसी दे वेले होए ने रहीम जी सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि धूड़ी कर इशनान। ते रहीम जी एक दिन तुलसी नूं मिलन गए ते उन्नी देर तक तुलसी दे कोल उस समय एक बादशाह राजा भी आया सी ते वो हाथी ते चढ़ के आया ते हाथी की करदा पिया सी, जमीन तो मिट्टी पट के अपने सिर ते सटे ते तुलसी विद्वान से उन्हें दोहरा कह दिता, कहन लगे दूर जड़ावत शीश पर कहो रीम क्या काज। ते रीम ने अगो उत्तर दिता, कहन लगे जे राज्य ऋष पत्नी तरी। राम दा भगत सी ना तुलसी। कह लगे रहीम अगो दोहरा पूरा करते हैं कि जिस चरना की धूड़ नाल गौतम ऋषि की पत्नी तर गई सी, हाथी इस करके तेरे को आया, तू राम की भगती करने वाला है, किते तेरे दर की मिट्टी लिया मेरा भी पाल उतार हो जाए। दोहरा पूरा कर दिता। तुलसी कहता सी कि दस दूर जरावर शीश पर कहो रहीम क्या काज। ते अगो रहीम कहता जे राज ऋष पत्नी तरी सो ढूंढत है गजराज। वो हाथी लभदा पिया। गुरु अर्जन साहब कहते ने तेनू संगत दे चरना की धूड़ देना वा, देख एदी सेवा करेगा ते तेरा इशनान ही माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। हुण अगे तकियो, इत्थे संगत कीती, सेवा कीती, फिर अगला स्टैप की इत्थे बस नहीं, इशनान होना है हर का नाम ध्याए सुन। सबना नूं करदा। दो शब्द ने, एक ध्यान दूजा सुन। ते जिदन अपना भांडा किते भरदा लगे ना, साईं तेरे ते कृपा करे ते दीवा बाल के पड़ोपे थले ना दई। तेनू जे शब्द पड़ोपे थले ना दई, निज स्वार्थ विच ना पै जाई, किसे टुटे होए दी झोली विच भी खैर पा दई। हर का नाम ध्याए सुन, सबना नूं करदा। पहला ध्यान फिर सुन। हुण आपां कहांगे ते तां गल पहलां कहंदे ने भी संगत विच आके बाणी सुनो फिर नाम जपो ते खेड़ उठी। कहण लगे हर का नाम ध्याए सुन। ये असल विच गुरमुखो जपण वालियां दे चरनां विच नमस्कार। ये अंदरों नाम सुन दी गल कही है, केवल का केवल बाहर का विषय नहीं। जदों तू दृढ़ अभ्यास करके नाम नूं ध्याएगा ते अगला स्टैप होवेगा कि जो कुछ तू नेत्र बंद करके सुनेगा तेरे अंदर नाद बजेगा, तेरे अंदर नाम निरंतर चलेगा। हर का नाम ध्याए ते किन्ना कु ध्या। गुरु नानक साहब दा एक अमृत बचन पढ़ियो कि एक दू जीबो लख होवे लख 20 लख लाख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। एक गुरमुख ने अर्थ किते ना कि लेना। वो कहते ने भी गुरु साहब कहते पे ने भी जे एक जीभ तो तेरियां लखां जीभा हो जाए, लख तो 20 लाख हो जाए, ते 20 लाख जीभ विचों एक एक जीभ नाल तू लख लख वरी भी रब कहे, इस तरह रब नहीं मिलता। गुरमुख प्यारे भाई वीर सिंह होरां ने अर्थ किते, कहन लगे तेरी एक जीभ तो लख, लखां तो 20 लाख, ते फिर एक एक जीभ जेड़ी वो लख लख वरी वैगुरु वैगुरु कहे, आपां कहांगे भी अत कथनी लगदी पई है। ख्याल ही हो सकता है, कविता का ख्याल हो सकता है, पर भाई साहब कहते ने नहीं, अभ्यास तू करना सिमरन दा, जपना पैन। यही जीभ जेड़ी है 20 लाख हो सकती है, ते एक बारी वैगुरु कहते इको दम 20 लाख जीभ जेड़ी है वो लख लख बारी वैगुरु कह देगी। पूछा किवें? वो कहते जदों तू अभ्यास करके जपेगा तेरा रोम रोम रसना बन जाएगा। एक बारी अंदर टेक के किया वाहिगुरु
ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਣਾਤ, ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਕੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਜਨਮ ਕਰਮ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਤੇ ਮੈਲ ਲਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੌ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਹਾਨ। ਕਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਰੁੱਸ ਗਏ 5 ਆ ਗਏ। ਕਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈਮਾਨ ਨੇ ਅਣਖ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੋਭ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਖ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਈਐ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਗੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿ ਕਾਮ ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਵਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ 25,000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਤੇ 13 ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
नामदेव जी ने पूछा किहड़ियां? कहन लगे पर धन, पर दारा, पर हरी। एक पराया धन, पर दारा पराई इस्तरी, तां कह निकट बसै नर हरी। कहंदे रब ओदी बुकल विच रहिंदा जी जिहड़ा दो गल्लां कमा लवे। काम क्रोध ना बोईए ते अगली किरपा कीती बिनसै लोभ सुआन। सुआन दा अर्थ कुत्ता। कहन लगे जिहड़ा लालच कुत्ता भौंकदा सी ना, बिनसै मेरे मालक ने वो भी किरपा करके टिका दिता है। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बारी इत्थे अर्ज कीती सी, लालच नूं कुत्ते नाल तुलना दित्ती ते वफादारी नूं भी कुत्ते नाल तुलना दित्ती। गुरु तेग बहादुर जी दे कदी दो शब्द पढ़ियो, स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नित, नानक ए विदहर भजो एक मन होए एक चित। कहंदे इस तरह जपी जिवें दर ते बैठा कुत्ता है। ते दूजे पासे कहंदे तमा तो बची सुख है हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारै द्वार स्वान जो डोलत, मैं सुध राम भजन की। ते उत्थे लालच नूं खड़किया कुत्ता कहा, वफादार कुत्ता आप खत्म हो जाता है, मालक का घर विच आंदा है, ते हल्के कुत्ते नूं मालक दुध पाए ते मालक नूं भी कट्टण तो गुरेज नहीं करता। साहब कहंदे किरपा कीती काम क्रोध ना मोहिया, बिरसै लोभ सुआन। धन गुरु अर्जन साहब कहंदे दृढ़ता नाल तुर पई। ये ठीक है जदों तू कहना भी मैं संगत विच इशनान करना, ते जिहड़े तीर्थ इशनानी ने उन्होंने तेरे ते दोष लाने ने। जदों तू सेवा करनी है तो लोगों ने तेरे ते ऊंजा लानियां ने। साहब कह लगे फिर सच्चा मार्ग चलदियां जेड़े कल तक निंदिया करते सन, सच का पल्ला न छड्डी उस्तत करे जहान, वही लोग कहणगे वाकई ये वर्गा जीवन किसी का नहीं। साहब धन गुरु नानक देव जी ने जन्म साखी विच एक बचन आउंदा है, इन्होंने मरदाना जी एक दिन उदास होके आए तो सतगुरु के कोल बैठे रहे, चेहरा थोड़ा जिहा ढलिया ते साहब पुछदे ने मरदानिया की गल अज चेहरे ते खेड़ा नहीं, बोलिया नहीं। सतगुरु ने फिर पूछा, फिर नहीं बोलिया। तीजी बारी आप झंझोड़ के कह लगे की गल रुस गया, बोलना नहीं, अखां भारियां। कहंदा दाता अज पिंड विच गया सा ना ते लोकां ने कहा ये ओ डूम जे जिहड़ा नानक कुराइया हो गया, कुराइये दा डूम है। साहब कह लगे फिर तेरियां अखां क्यों भारियां? देखो उहदे अंदर दा प्यार। कहंदा दाता मेरे बाप नूं ही लोग डूम कहंदे ने, साडे खानदान नूं लोग डूम कहंदे ने। जदों तैनूं कोई कुराइया कहंदा मेरे अंदर नूं चीर के लै जांदा है, इन्हां नूं पता ही नहीं कि गुरु नानक दे चरनां विच किन्नियां को रहमतां। लोग कहंदे ने कुराइये दा डूम, मैनूं डूम कहण पर तैनूं कुराइया क्यों? अखां भर के जदों रो पिया साहब ने सीने नाल ला के क्या मरदानिया भस पए इन्हां दे सिर ते, जेड़े अज तैनूं कुराइये दा डूम कहंदे ने कल तेरे दर्शनां दी सैकण करनगे। कभी तकियो दृढ़ता नाल तुरिया जाई ते चेते रखी निंदक लोग भी एक दिन मनणगे तेरी कमाई नूं नमस्कार। साहब कह लगे सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। प्यारिया 68 तीर्थां दा इशनान पुन दान तू करना है, किसी एक जीव ते दया कर दी 68 तीर्थ इहदे विच ही। हुण प्यारियो अज जदों मैं पेपर कई बारी तकना ना गुजरात विच की हो रहा है हकीकत है तो असीं पर्दा अखां ते अगे पा नहीं सकते। साडे नाल की होया ते उन्हां लोकां कीता जेड़े कह रहे ने हिंसा परमो धर्मा, सब तो पवित्र धर्म जेड़ा ओ हिंसा है। ते गांधी जी सारी जिंदगी नारा मारिया ते की अज उत्थे जे कोई बाहर दा तीर्थ इशनान करदा है ते जिउंदे बच्चियां नूं चीरदा, बीबियां नूं चीरदा, बजुर्गां नूं चीरदा पिया, कि ओ अहिंसा परमो धर्म है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं गल सुनो मेरी, केवल तू कीड़ी नूं तां बचाई जाना है ते चेते रखी हिंसा एक तरह की नहीं। जदों तू किसी दे खिरदे नूं चीरना बोल के वो भी हिंसा है। बाबे फरीद ने एक बचन किया सी, कहन लगे सबना मन मानक ठाहन मूल बचा लवा। वो सारिया हिरदियां विच रब वसदा, वैगुरू वसदा, हरी वसदा है। जे तो तरिया दी सिख जे रब नूं मिलना चाहना तां हयाओ ना ठाए कहीं दा किसी दे हिरदे नूं ढाई ना। भाई साहब भाई वीर सिंह ने श्रीनगर ਉਹਦੇ नेड़े एक मंदिर है मारतंड, बड़ा पुराना मंदिर खंडरात हो गया सी, जालिम ने ढाया। भाई साहब ने उस खंडर दे उस मंदिर के टुकड़ियां नूं देख के कविता लिखी, कहंदा मार पई जद मारतंड नूं पत्थर रो कुरलाने, टुटियां मूर्तियां ने
कहन लगे मार तई पई जब मारतंड नूं पत्थर रोक लाने, पत्थर तोड़े दिल पिया टुटदा दिल काबा रब आने। पत्थर नहीं तोड़दा लोकां दे दिल पिया तोड़ना, ओनू तोड़ना जिथे रब रहिंदा पिया सी। साहब सच्चे पातशाह कहते ने तू दया मन में धारण कर ली। समझी मैं 18 तीर्थां दा इशनान कीता ते तुलसी ने तां शब्द ही वरतिया सी। कहन लगे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबला घट में प्राण। बाबा जी ने पूछा धर्म की है? कहन लगे धर्म होवे जिदे सज्जे हथ दया खलोती है ते खब्बे हथ संतोख खलोता है। ताई क्या सी धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। कभी देखो मेरे बाबे दे घर दी दया, अकबर वर्गा हुंदा है, आके प्रसाद छकदा है, कहना मैं लंगर ना जगीर। गुरु अमरदास कहते नहीं, कहता फिर सेवा। तन गुरु अमरदास कहते ने जेड़ियां बच्चियां दा साईं चला जाए, जबरदस्त उन्होंने चुक के चिखा विच जिउंदियां नूं साड़ के सती करते हैं। जे तेरे कोल हकीम हुकूमत है, उन्होंने बच्चियां दियां चीखां नहीं सुनिया जांदियां, सती प्रथा ते रोक ला दे। है अंदर दया ते साहब ने फिर उत्ते शब्द वरते। केड़ा कहंदा सी कि जगत जलंदा रख लै जी दया प्रवान, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारा उभरै तितै लिहो उभार। की जी दया नहीं? सिख भावें अरदास करे पुत्र दे जन्म दी, सिख अरदास करे भावें पुत्र दे मौत दी, सिख अरदास करे खुशी दी गमी दी, घंटे दी 2 घंटे दी अरदास कर ले। पर बाबा जी कहते ने अरदास च मत्था टेकण तो पहला शब्द तेरे मुंह विचों निकलन केड़े कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जी दया प्रवान असर तीर्थ सगल पुन, जी दया प्रवान। सतगुरु फिर संगत चरना की धूड़ अपने उद्यम नाल नहीं कह लगे, जिस नूं देवै दया कर सोई पुरख सुझान। जिदे ते तू त्रुठे ओनू कृपा करके तू दात देना, दया दी सिमरन दी ध्यान दी जपन दी। साहब कह लगे जिन्ना मिलिया प्रभ अपना, जिन्ना नू मेरा साईं मिल गया, नानक तिन कुर्बान। तन गुरु अर्जन साहब कहते मैं उन्हां तो कुर्बान जे जिन्ना नू साईं मिले। हाँ कुर्बान है जाऊं तिना कह लैण जो तेरा नाम, जेड़े तेनू जपदे ने। मेरे मालक कबीर सुपना हूं बरड़ाए कह, जे मुख निकसा राम ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। साहब गुरु ग्रंथ साहब कहते ने जो सास गिरास ध्यावै मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवर नाम जपावै। जिन मिलिया प्रभ अपना जन के चरण वसै मेरा हियर है, संग पुनीता देही जन की धूड़ देओ कृपा निध नानक कह सुख सुख यही। कह लगे जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। ते खीर ते कह लगे तीर्थ नल सुचमता नहीं, माघ सुचे से काढ़िए। माघ दे महीने विच सुचे ओ बने ने जिन पूरा गुर विद्वान, जिन्ना ते पूरा सतगुरु मेहरबान हो जाए, दयालु हो जाए, फिर वो सुचे ने। ते वो सुचे किवें होए? साहब कह लगे सुचे ये ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। जिन्ना अंदर साईं वस गया वो अंदरों सुचे ने, वही सचियार ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे असी गुरमत दा मार्ग जे सिमरन करना, साध संगत करनी, जपन वालियां दे चरनां दी धूड़ मस्तक ते लाई। बाकी फिर गुरु दा काम है, वो आप ही कृपा करके मंजिल बख्शदा है। होइयां बेअंत भुल्लां साध संगत बख्श दिया जे। कल अखीर दा दीवान है इस फेरी दा। एक बेनती आप दे चरनां विच हुण भी करनी है कि कल जिवें आप जी नूं पता है कि इस गुरु घर विखे लंगर दी इमारत दी उसारी होनी है। देखो आउणा आप ही इस गुरु घर विच अपने वित मुताबिक जिथे आप किरत करदे हो दसवंध दी माया विचों सतगुरु दे घर दी सेवा लई प्रबंधक वीरां दा सहयोग दिया जे, तां जो सतगुरु दे घर दी सेवा हुंदी रहे। आप नेम नाल देखो आप दसवंध कढदे ने विचों गुरमुख प्यारे आप विचों, फिर भी इनू अपना गुरु का घर अपना घर है। तो मैं तो कई बार हस के कहना हुंदा कि अखीर ते जिस घर दे लोकां नूं नहीं रखना, सुपना विच भी किते घरदिआं नूं दिस गया उन्हां अरदास ही करानी है भाई साहब जी
पता नहीं मरण तो बाद सुपने में की आउंदा, अरदास करो सुपने में ना दिसे करें, सुपने में भी देखना पसंद नहीं करते, फिर गुरु घर ही अरदास होनी है, उस गुरु की सेवा करिए। दूसरी बेनती गुरमुखा ने हुक्म किया सी, जे मालिक को अगले साल पाया उसकी रहमत है सिद्ध गोष्ठ की विचार ले, वो विचार आप दे इस स्थान से यत्न करांगे अगले साल कल खीरला दीवान है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।